अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत और आज है। जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है नॉट द डॉक्टर जयशंकर यू नो। ओके, तो चलिए जानते हैं भी डॉक्टर जयशंकर जी के बारे में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए इनके चैनल को। इसका मैं ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। I'm from a bureaucratic family. You know, my father was a bureaucrat. I have an elder brother who was a bureaucrat. My grandfather was a bureaucrat, and we have aunts and not aunts but uncles who were there. So our world, if I can put it to you this way, was very, very bureaucratic. Our goals, our dreams were bureaucratic. What do you mean by that? Meaning, you know, if you had asked me, if you and I had met, which we had, let us say in 2010, and say, okay, Jaishankar, what's your dream? I'd say, I want to become foreign secretary. That's the dream of any foreign service officer. Now, in our household, there was also, I would say, I won't call it pressure, but we were all very, very conscious of the fact that my father, who was a bureaucrat, had become a secretary, but he was removed from his secretaryship. You know, he became at that time probably the youngest secretary in the Janta government in 1979. So in 1980, he was secretary defense production. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. And, you know, he was the most knowledgeable person, everybody would say, on defense. He was also a very upright person. Maybe that caused a problem, I don't know. But the fact was, as a person, he saw his own bureaucratic career in bureaucracy actually kind of stall. And after that, he never became a secretary again. He was superseded during the Rajiv Gandhi period for his, somebody junior to him became cabinet secretary. So it was something he felt. We rarely spoke about it, but it was obviously something which must have been inside him. So he was very, very proud when my elder brother became secretary. In my case, he passed away in 2011. At that time, I had got what you would call grade 1, which is like a secretary rank ambassador. I didn't become secretary. I became after he passed away. But for us, at that time, the goal, you could say, was, okay, we must become secretary. Say, JNU was different. I was 18 when I went to JNU, okay? And JNU was very, very firmly leftist at that time. And I think everything, at 18, what you intuitively believe is either formed by your friends and acquaintances or what is reflective of your home. Definitely in our home, my father, who was a very strong influence on us, was very distrustful of ideologies and people who he believed were not, who did not have the loyalties in our own country. Such as? Well, you look, we are not talking. Remember, he had his own views about what was happening in the 40s and 50s at that time, who was for the national movement, where did different people, how did they switch? He was very, very distrustful of the left, so of the communist left. I think some of it, so in a sense we grew up very unspokenly but very strongly as very patriotic children, you might say. We kind of went to these military institutions. I went to Air Force School, to King George's Bangalore Military School. My siblings went to, some of them went to Naval School, to Sardar Patel Vidyalaya. So I think that was the kind of mindset I took into JNU. So in fact in JNU, which was a dominantly leftist outlook, where the teachers, the students, the administration, everybody was very leftist, my
lot of people, my cohort were the first set of people who actually politically took on the left. I was very clearly with what was called the free thinkers. How many languages do you speak? You're a polyglot. Obviously, I speak English. I speak Hindi, I won't say at a very high standard, but with a kind of a street smart fluency. The Tamilian Hindi, or is it a JNU Hindi? No, it's actually a Delhi Hindi. Delhi Hindi. I mean, I was born in Delhi. Okay. You were born in Delhi? Yes, I was born in Delhi. I was born in Delhi. I grew up in Delhi. I spent, whatever time I've spent in India is largely Delhi. So it's a very Delhi person's, I would say, fluent, not always complex Hindi. Because I grew up in Hindi, I didn't have the advantage of ever studying Tamil. I can speak Tamil, but not with with the kind of fluency and command of vocabulary that I would like. Russian is different because I actually studied Russian when I was in the foreign service. We are allotted a language, so I went there. So I actually properly studied it using books and so on. I have a certain, I would say, working a rudimentary sense of Japanese because I do need to talk to my wife from time to time. Okay. We've kind of evolved something which is peculiar to us, and this happens, in this situation. I mean, it could be your food, it could be your slang language, what you say to each other. I mean, we use phrases which somebody else listening in would find very difficult because there could be Japanese slang put in an English sentence, sometimes with a Hindi twist, because my wife's linguistic ability is much better than mine. I learned Hungarian, but unfortunately it's very rusty. So people make more claims about me than I do myself. भाई सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जयशंकर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो कहीं पे भी इंटरव्यू दे रहे हो ना, वो इतने क्लियर कट होते हैं ना चीज़ों को लेकर के भाई जो वो बात कहना चाहते हैं आप जो है वो समझ आते हैं। लेकिन जो है जो आज के इस इंटरव्यू में एक दो चीज़ें जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा उनके फैमिली बैकग्राउंड की। मुझे ये पता था कि उनके जो पिताजी हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन उससे पहले भी उनके ख़ानदान में जो है ब्यूरोक्रेट से, ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी। हाँ, जैसे उनके भाई के बारे में बात की जाए, बट मुझे ना ये चीज अच्छी लगी है। लाइक आज की वीडियो में ऑल्दो हम कहेंगे कि छोटे छोटे हम लोगों ने डिस्कशंस देखी हैं जिसका बैकग्राउंड इतना ज्यादा तो इसमें डिस्कस नहीं किया गया, बट हाँ एक हाईलाइटेड तरीके से हम लोगों ने वो देखी है डिस्कशन, तो थोड़ा आइडिया तो हो गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा आजकल के दौर में बात है कि जैसे पॉडकास्ट अगर आप पॉलिटिशियंस के साथ भी करते हो तो लोगों तक बहुत सारे लोग इसको इंटरेस्ट लेकर सुनते भी हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलता है। सो मुझे लगता है कि अपने लोगों के साथ किस तरीके से डिफरेंट मीडियम के थ्रू आप कनेक्ट रह सकते हो, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यूजली हम लोग ऐसा देखते नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन को या कोई किसी फॉरेन मिनिस्टर को इस तरीके से देखा हो कि वो पॉडकास्ट में लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहा हो, या हम लोगों ने यहाँ तक नहीं देखा कि जो वाकई में डिबेटेबल हम कहेंगे कि चीज़ें होती हैं या टॉपिक्स होते हैं उन पर आकर किसी मिनिस्टर ने डिबेट की हो कि वो डायरेक्टली लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। बट डॉक्टर एस जयशंकर जी के बारे में अगर बात करें, मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद है उनका जो एक हम कहेंगे कि स्वभाव है, और जिस तरीके से वो बड़ी हम कहेंगे मुश्किल से मुश्किल बात भी बड़ी आसानी के साथ बोल देते हैं, तो मुझे वो उनका स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बात की कि लाइक जो उनका एक करियर रहा ब्यूरोक्रेसी में, और जैसे वो अपने आप को देखते थे बट उसके बाद वो नहीं बन पाए उस तरीके से, तो आगे से अगर देखा जाए तो उनकी फैमिली में हाँ एक देखा जाए तो वो चीज़ जो है उस तरीके से पूरी की गई। तो ये एक जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, आई थिंक आप बहुत सारे इसमें उतार चढ़ाव देखते हो, और समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक इंसान का सेक्रीफाइस जो है ना वो बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे लगता है कि आसानी बना देता है, या आपको एक डायरेक्शन दिखा देता है कि आपने अपनी लाइफ में करना क्या है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं पॉडकास्ट की बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इसमें तो कोई शक नहीं कि पॉडकास्ट का कल्चर इतना ज्यादा नहीं है जितना इंडिया में। अब आगे कुछ थोड़ा बहुत जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हाँ अगर वो पॉलिटिशियंस की बात करें तो पॉलिटिशियंस जो है मेरा ख्याल शायद इस वजह से नहीं आते कि उन्हें यही समझ नहीं लगती कि भाई हम आकर क्या बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देखते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं
जो बात कर रहे थे वो तरक्की से रिलेटेड तो होती नहीं, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो होती नहीं। ऑन दी साइड हाँ, आप इंडियन मिनिस्टर्स को देखते हैं तो उनमें जो है आपको ये चीज़ नज़र आती है कि वो जो है प्रोग्रेस से रिलेटेड जो है वो हाँ बिल्कुल बात करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पर बात की मानदी ने कि इनके जो डॉक्टर जयशंकर जी जो हैं, इनके जो पिताजी थे जो ब्यूरोक्रेट रहना चाहते थे, इनके आगे उसमें मज़ीद जाना चाहते थे, तो ये चीज़ मैंने एक जो बहुत कॉमन देखी है, ख़ासतौर पर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिशियंस की बात करूँ, सॉरी ब्यूरोक्रेट्स की बात करूँ या बड़े बड़े गवर्नमेंट अहदों की बात करूँ, तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो बहुत सारी जो पोस्ट होती हैं उनमें जो है रदोबदल जो है आपको देखने को जो है वो मिलता है। बहुत सारे लोगों को जो है उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है या ट्रांसफ़र जो है वो कर दिए जाते हैं। तो ये एक जो है ना इंडिया का, अब मुझे नहीं पता कि इंडिया में अब क्या इसका जो है एक रूटीन है, लेकिन पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में आपको जो है ये चीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती है। पाकिस्तान में तो पुराने प्रोजेक्ट होते हैं वो नई गवर्नमेंट वो बंद कर देती है, तो वही मिनिस्टर तो जो जाते रहते हैं साथ में वो प्रोजेक्ट्स भी डिले हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है लैंग्वेजेस की बात करें तो भाई ये तो हमें पता है कि डॉक्टर जयशंकर जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो उसमें एक्सपर्टीज रखते हैं। वो यानी कि रशियन का तो हमें पता था, ठीक है ना। तुम्हें रशियन का पता था? रशियन का हमने एक दफ़ा सुना था, किसी में कमेंट में मेरा ख्याल पढ़ा था कि उन्हें रशियन और जापानीज जो है ये आती हैं, ठीक है ना। लेकिन रशियन जो लैंग्वेज है वो स्टडी की है, मतलब जापानीज उन्होंने बोला कि मैं अपनी बीवी के साथ हाँ, लेकिन ये दो का मुझे पता था, लेकिन जो हंगरी की लैंग्वेज है उसका मुझे जो है नहीं था मालूम, ये भी मेरे लिए एक चीज़ नहीं थी। हाँ, एम्बेसडर जो डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली उनको वहाँ की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत जो है वो समझनी और सीखनी पड़ती है। मेरा ख्याल है कि बहुत कम इस तरह होता होगा, ज़्यादातर जो है वो एक इंग्लिश जो है उसे एज ए मीडियम जो है इस्तेमाल करते होंगे। बट आई थिंक थोड़े बहुत वर्ड्स तो जरूर उनको पता होते होंगे, बिल्कुल। वो आते ही होंगे। लेकिन डॉक्टर जयशंकर जी से जो है ना एक चीज़ जो है वो आप सीख सकते हैं कि भाई जहाँ पर जाओ वहाँ का जो है जो भाषा है वहाँ की वो ज़रूर सीखो, वहाँ का कल्चर जो है वो ज़रूर सीखो, क्योंकि अगर आप देखें ना तो एक चीज़ इनमें नज़र आती है। वैसे अगर हम लोग सक्सेस स्टोरीज भी देखें ना लोगों की, जो स्पेशली आप देखते हो, जैसे हम लोग किसी स्पाई की भी देखते हैं तो आप देखो उनको लैंग्वेज भी आती है, उनको वहाँ के कल्चर के बारे में भी पता होता है और वो इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि मतलब उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना आइडिया हो जाता है। तो वाकई में मुझे लगता है कि किसी भी कंट्री में जब आप चीज़ें सीखते हो समझते हो तो उनका कल्चर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी बीच में JNU के बारे में भी बात की गई, तो JNU के बारे में मुझे वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, बट मैंने इतना थोड़ा बहुत ज़रूर सुना है कि वहाँ पर थोड़ी जो आप कह लें कि लोगों की जो ओपिनियन है और जो सोच है वो डिफरेंट है काफ़ी, मतलब और इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता इसके बारे में। बट हाँ, मतलब ये जो एक राइट वाला और लेफ्ट वाला है ना, ये मतलब मैंने ज़रूर सुना हुआ है उनके बारे में। और जब हम वैसे पता है यूट्यूब करियर से पहले मुझे राइट और लेफ्ट जो राइट और लेफ्ट विंग इनके बारे में इतना पता नहीं था। ये यूट्यूब जर्नी में हम वैसे मुझे तो भाई अभी भी समझ नहीं लगती कि राइट और लेफ्ट भाई क्या होता है। हाँ, राइट आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राइट विंग जो होते हैं ना वो आई थिंक पेट्रियोटिक होते हैं ज़्यादा। अच्छा। और जो लेफ्ट विंग होते हैं वो शायद होता है कि वो लाइक उन पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं मुझे नहीं आइडिया। हाँ, मुझे लिटरली इस बारे में कोई इतना आइडिया नहीं है। मतलब ये होता है ना कि आपका नेशनल इंटरेस्ट में मैं अब इसको ज़्यादा एलैबोरेट करूंगी तो हो सकता है मैं ही गलत हो जाए, तो आप ज़रूर बताइएगा हाँ कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या ओपिनियन है डॉक्टर जयशंकर जी के बारे में, आपको कितने पसंद है, या आपके जो बेहतरीन आपको लगता है दुनिया में फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं डिफरेंट कंट्री से, उनमें किन किन का नाम है ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।